Namaskar, everyone. Welcome to this platform of Ninat Foundation, Ehsaas Ek Mulaqat. This is our 6th episode. So, in the previous all episodes, we have discussed in different aspects of the fields related to our dance and the dance professionalism. Yujyate anena iti yoga. Yuj means joining. It is joining of the individual, your self Jivatma, with the universal self, Paramatma. Yoga, a continuous process of gaining mastery over mind. It causes an all-round personality development of the physical, mental, intellectual, emotional, and spiritual. As well, we know Indian classical dance is essentially a vast gamut of highly graceful and balanced body movements that were originally designed to tell stories. The use of mudras, and especially in the form of Kathak, the chakras, the piravits, that is very similar to the chakra balancing of yoga. And the Abhinaya, definitely, the feeling of rasa, has given Nritya the recognition as fifth Veda or the Natya Veda. And that is based on other 4 Vedas, which was basically taught by the Indian sages as a form of yoga. तो नृत्य और योगा ये दोनों एक सूत्र में बांधे हुए हैं, क्या चाहे शास्त्रीय हो और चाहे व्यावहारिक हो, दोनों तरफ से. आज हम लोग इस तरफ ही towards this direction we will take our conversation with eminent personality of yoga, Acharya Kaushal Kumar ji. Namaste. Namaskar, Kaushal ji. Ji, namaste. Namaste. Ji, welcome you to this platform of Ehsaas Ek Mulaqat, and thank you so much for joining us today. Ji. Thank you. So, Acharya ji, I will just read a short profile about you because as our conversation starts. Acharya Kaushal Kumar is a renowned yogacharya working in the field of yoga from the last 33 years. He was pursuing his MPhil in economics from Delhi School of Economics and met his guru Swami Satyananda and left his studies in between and joined yoga in 1987. He had been continuously serving humanity through yoga since then and organized thousands of yoga camps, seminars that has been telecasted regularly on Doordarshan and other news channels. He is a regular columnist and has written almost 10 books on yoga. So his yoga techniques is very helpful in curing depression, stress, and anxiety. Definitely, you need much more. This is a very related issue in today's condition. And his specialization area is yoga therapy. That just can channelize our energy to higher goals. So that is very, in a shorter way, in a briefly हम लोग बोल सकते हैं, but बहुत कुछ है आपसे जानना है थोड़ा सा. तो जो मैंने यहाँ पे देखा आपने जो बोले हैं, फिर भी आपने पहले कि आपने पढ़ते स्वामी सत्यानंद जी को meet and you just left your studies and you joined him and then for a longer period you were with him. तो कैसे आपका ये मतलब रियलाइजेशन हुआ उनको देख के मोटिवेशन and you just chose a मतलब path of yoga and you came to this field and chose your career? I did my MA in economics from Allahabad University, and then I came to Delhi and I got admission in MPhil from Delhi School of Economics. Okay. So I was about 3 to 4 months studying in MPhil. Then my HOD has invited Mr. Satyananda for a program of personality development
in my institute. जी And he was here when he was here, and I think he took the program about 3 hours, personality development program. जी और 3 घंटे उनके साथ बैठे रहने में जी कुछ ऐसा अनुभव हुआ, और इस तरह से कुछ अपने आप ही मन में आया कि जो है ये चीजें ज्यादा मुझे लगता है कि बेहतर हैं इकोनॉमिक्स से। जी अच्छा क्योंकि उनका 3 घंटे बड़ा ब्रीफ था, और 1.5 घंटे के 2 थे, और आधे घंटे का गैप था। तो आधे घंटे का, जब 1.5 घंटे के बाद हम आधे घंटे उनसे मिले अलग से, तो उन्होंने आधे घंटे केवल मेरे ऊपर ही दे दिया, अच्छा और बाकी लोगों से उन्होंने बात ही नहीं की। पता नहीं क्यों उन्होंने आधे घंटे मुझे दिया, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जी So he told me that, Kaushal, first you have to know about your own self. We all are studying, and we are studying about the science, geography, economics, philosophy, everything. जी And these are the outer subjects. मतलब कि आप बाहर की चीजों का आप ज्ञान कर रहे हो, तो क्या तुम अपने आप को पहले जानते हो? जी और तुम अपने आप को नहीं जानते हो, और बाहर की सारी चीजों का ज्ञान फिर किस फायदा है, वो किस काम का है? जी तो पहले आप अपने आप को जान लो, फिर बाहरी चीजों का तो ज्ञान हो ही जाता है। जी आप किस लिए इस संसार में आए हो, व्हाई यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड, एंड व्हाट हैव यू टू डू, व्हाट इज योर पोटेंशियल, व्हाट इज योर एनर्जी, एंड व्हाट कैन यू डू। सो फर्स्ट यू शुड नो दिस, देन यू कैन नो ऑल द वर्ल्ड। बिल्कुल तो मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है कि हम अपने आप को तो खुद नहीं जानते हैं, और बाहर सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। जी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उस समय मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि जो है, कौशल, तुम यहाँ से बैठ करके तारों को देख सकते हो, करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर की दूरी पर वो तारे हैं, लेकिन क्या तुम अपनी आंख में लगे हुए काजल को देख सकते हो? इतना दूर की चीज तुम्हें दिखाई पड़ जाती है, लेकिन अपने सबसे नजदीक की चीज नहीं दिखाई पड़ती है। आत्मदर्शन। हाँ, तो आप जो है, हम इतना दूर की चीजें देख लेते हैं, यानी हम दूसरों को तो देख लेते हैं, दूसरों की गलती निकाल लेते हैं, दूसरों की अच्छाइयां देख लेते हैं, और सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को हम जीवन भर नहीं जान पाते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाया, तो फिर उसका जीवन का कोई अर्थ बहुत विशेष नहीं है। वह केवल जैसे अन्य जीव जीते हैं, जैसे अन्य पक्षी जीते हैं, वैसे हम भी जीते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी, अपीलिंग लगी। और फिर मैंने जो है, वो एक दिन थे, उसी दिन जिस दिन प्रोग्राम था, उस दिन वो थे, दिल्ली में ही थे। तो मैं उनके होटल गया मिलने, और उन्होंने वहां पर भी मुझे 2-2.5 घंटे का समय दिया। क्या बात है, क्यों दिया समय, आई डोंट नो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिप्नोटाइज टाइप की कोई चीज होती हो, ऐसा उन्होंने किया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे लिए इकोनॉमिक्स नहीं है, और फिर मैं दूसरे ही दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे चले जाना चाहिए। और माँ बाप से मैंने इस बात पर चर्चा नहीं की, और मैं चला ही गया। और फिर उनके साथ रहा कुछ दिन। अचानक एक दिन वो खुद ही आश्रम छोड़ करके चले गए, बिना किसी को कुछ बताए। उस स्थिति में फिर मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ा। हर एक कोई भी एक इंस्टीट्यूट होता है, वहां पर फिर राजनीति भी होती है, ढेर सारी चीजें होती हैं, ये तो मनुष्य का स्वभाव ही है। तो फिर मुझे खुद ही वहां से फिर मैं भी बाहर निकल आया। तो यह स्टोरी है। और फिर हम आकर के हमने अपने आप को खुद का ही कुछ करने का प्रयास किया जी। तो इस तरह से हमारी ये योग की जीवन यात्रा शुरू हुई थी। अच्छा, फिर अपनी मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग उनके पास पूरा सीखे एंड हाँ, लगभग 2.5-3 साल उनके साथ थे। तो फिर वहाँ हमने सारी जो कुछ सीखना था वो सीखा। और वास्तव में तो ये तो ऐसी प्रक्रिया है कि ये काफी लंबी चलती है। 2-2.5 साल 3 साल की तो बात नहीं होती है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है। और फिर हम वहां से निकल करके हम अपनी उस साधना को करते रहे। और उनसे हमने हठ योग की विद्या ज्यादा सीखी थी। उसके बाद हमने जो है ध्यान योग की विद्या, एक दूसरे गुरुजी हमारे हैं, अचानक वो भी मिल गए मुझे हरिद्वार के कुंभ में। तो मैंने फिर उनसे सीखी, और फिर मैंने पूरा जीवन इस पर समर्पित कर दिया। जी।
तो कौशल जी, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ योगा है, मतलब हठ योगा हम लोग सुनते हैं, मतलब मुझे ज्यादा उसमें ये नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा, क्या कौन सी योगा का कितने टाइप्स है, क्या है, एक बार अगर बताएं। बिल्कुल। बेसिकली योग जब स्टार्ट हुआ था तो वैदिक समय से था, और वेद के भी पूर्व था, पहले का था, क्योंकि वेद जब में लिखी गई जो चीजें थी, वेद को हम लोग श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब जो सुन करके लिखा गया हो। तो पहले क्या होता था कि गुरु लोग, लिखने की पद्धति थी नहीं, कॉपी पेंसिल आदि ये सब चीजें नहीं थी, पेन नहीं थी, तो उस समय गुरु लोग अपने शिष्य को चीजों को श्लोक बना करके सिखा देते थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो मतलब कि याद करवा देते थे। तो वो फिर लीनियज चलती रही, फिर गुरु अपने शिष्य को, फिर शिष्य जब गुरु बना तो अपने शिष्य को, इस तरह से वो लीनियज चलती रही। बाद में जब लिखने की प्रथा शुरू हुई, और वो कितने दिनों बाद हुई, 200-400 500 100 साल लग गए होंगे, फिर जब लिखने की प्रथा शुरू हुई तब वेद बना, और वेद में योग का जिक्र है। तो जो मूल योग था हमारा, वो मूल योग तो वैदिक कालीन है, और वह योग जो है वह केवल मन के नियंत्रण की बात करता है। वह कहता है कि यू रियलाइज योरसेल्फ फर्स्ट, एंड हाउ कैन यू रियलाइज? ओनली बाय थ्रू mindfulness and awareness, through meditation and samadhi। लेकिन फिर धीरे धीरे ये देखा गया कि वो पद्धति थोड़ा सा कठिन है, सबके लोगों के लिए नहीं संभव है। सारे लोग इस संसार के, तो स्वाभाविक सी बात है कि वे मन पर नियंत्रण करने का नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना एक माइंड लेवल होता है। और हमारे यहाँ योग में ये पहले ही बताया गया है कि हमारे चित्त के 5 स्तर होते हैं। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मिति चित्त भूमया। क्षिप्त का मतलब होता है कि बहुत निचले स्तर का व्यक्ति, जिसका मन इतना चंचल होता है कि वह जानता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ होता है। और एक कान से आदमी को जैसे अंदर गई, तो उसके कान से अंदर जाती ही नहीं बात। एक तो जाता है कि अंदर से कान गई बात, फिर बाहर दूसरे से निकल गई, उसके कान में बात ही नहीं जाती है, इतना उनका मन अस्थिर होता है। तो उस तरह के व्यक्ति को अगर आप इस तरह से योग आदि की चीजें समझाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि नहीं समझ आने वाली है, क्योंकि उसका मानसिक स्तर उस तरह का नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने विक्षिप्त बताया, दूसरा उन्होंने मूढ़ बताया। मूढ़ का मतलब है कि जो बहुत ही मूढ़ प्रकृति के लोग हैं, जो बहुत ही आलस्य और तंद्रा से ग्रस्त लोग हैं, तमोगुण से ग्रस्त लोग हैं, वे भी योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योग के अभ्यास में तो हमें बहुत ही मानसिक स्थिरता, शारीरिक स्थिरता, शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम ये करना पड़ता है। तीसरा जो है विक्षिप्त स्तर के होते हैं। विक्षिप्त का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें मन तो चंचल जरूर होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ठहरता भी है। तो आजकल जो सामान्य स्थिति है, तो उसमें ये लोग हैं विक्षिप्त, जिसको हम कहते हैं। वैसे तो विक्षिप्त का मतलब पागल होता है, लेकिन यहाँ विक्षिप्त का मतलब विशेष क्षिप्त है कि आप क्षिप्त भी हो, मन आपका चंचल भी हो, लेकिन स्थिरता भी आए। जैसे मान लो हम ही थे, अपने गुरु का हमने भाषण सुना, हमको बहुत अच्छा लगा, और फिर उस समय हमारा मन एकाग्र हुआ, हमने वो पद्धति सब कुछ छोड़ करके उनके साथ लग लिए, तो यानी हमारे अंदर थोड़ा सा स्थिरता भी रही होगी। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा सा स्थिरता भी होती है, लेकिन वो स्थिरता ज्यादा दिन नहीं चलती है। थोड़ा दिन 2-4 दिन करेंगे, फिर छूट जाएगा, फिर 2-4-10 दिन करेंगे होगा, फिर छूट जाएगा। ये कॉन्सिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली नहीं चल पाता है, तो ऐसे विक्षिप्त लोग होते हैं। चौथा एकाग्र लोग होते हैं। एकाग्र का मतलब जिनका फोकसनेस बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग ही योग के योग्य होते हैं, और संसार में ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसलिए सारे लोग योगी नहीं बन सकते हैं। और योग में जो सबसे पहली बात बताई गई है अभ्यास और वैराग्य की, डिटैचमेंट की, कि आप वैराग्य करें, संसार को आप त्यागें। संसार को त्यागें का मतलब मन से आप संसार को त्यागें, वह सारे लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाद के कुछ ऋषियों ने ऐसी पद्धति सोचा कि इस तरह तो संभव नहीं है, तो बेहतर है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो सामान्य लोगों के लिए भी काम कर सके। तो उसमें उन्होंने हठ योग विद्या की खोज की। तो हठ योग में हम शरीर से शुरू करते हैं। राजयोग जो मैंने आपको बताया, उसमें हम सीधे मन से शुरू करते हैं, सीधे मन को एकाग्र करना शुरू करते हैं। हठ योग में हम शरीर से शुरू करते हैं, क्योंकि शरीर हमारा थोड़ा ग्रास होता है। ग्रॉस बॉडी पर हम, ग्रॉस चीजों पर हम मन को ज्यादा एकाग्र कर सकते हैं।
बिल्कुल जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, तो यहाँ ये ग्रॉस ऑब्जेक्ट है। ग्रॉस बिल्कुल ऑब्जेक्ट पर जब आप जाते हैं तो आपका मन थोड़ा सा जल्दी एकाग्र हो जाता है। राइट आपको मैं कहूँ कि आप बैठ करके ध्यान करना शुरू करें तो मन एकाग्र जल्दी से नहीं होगा, भटकता रहेगा। हाँ तो इसलिए हठ योग बनाया गया कि पहले आप अपने शरीर को साधो, और शरीर की जब क्रिया करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर पर आपका माइंडफुलनेस आएगा, शरीर पर अवेयरनेस आएगा, तब आपका मन थोड़ा सा एकाग्र होगा। जब ग्रॉस से थोड़ा शटल होने लगे तब धीरे धीरे फिर आप राजयोग पर आओ। और इसीलिए हमारे यहाँ हठ योग में ये कहा गया है, हठ योग के जो बहुत ही अच्छे एक हठ योगी थे स्वामी स्वात्मा राम, तो उन्होंने जो दूसरा उनकी उनकी पुस्तक थी उसके दूसरे श्लोक में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वामी स्वात्मा राम योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। वो कहते हैं कि हे गुरु, आपको प्रणाम है, और आपको प्रणाम करते हुए मैं स्वात्मा राम योगी अपनी बात कहने चल रहा हूँ। हठ योग विद्या यह साधन है राजयोग के लिए। हठ योग इज अ मीन्स टू अटेन राजयोग। माने हठ योग इज नॉट अ एंड, हठ योग इज ओनली अ मीन्स, ओनली अ लैडर। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि आज हम लोग हठ योग को ही लेकर के चल पड़े हैं, बाकी चीजें हमारी हट गई हैं, और इसीलिए योग केवल एक व्यायाम रह गया है। एकदम। और व्यायाम रहने से देखिए, आप मान लो 1 घंटे योग करते हैं, तो अब आप उसको व्यायाम के रूप में कर रहे हैं तो आपको व्यायाम का लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें लाभ नहीं होता है, आपको शारीरिक लाभ हो जाएगा, थोड़ा सा आपका शरीर चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी, और आपका एज कुछ 10-15 साल 20 साल कम लगने लगेगा। ये सारी चीजें तो संभव है। लेकिन उस 1 घंटे में अगर आप राजयोग के साथ उसका अभ्यास करते तो उसका लाभ हजारों गुना बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये हठ योग और राजयोग में यह विशेष अंतर होता है। और भी दूसरे हैं, जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो जो व्यक्ति जैसे होता है, जैसे कुछ लोग बहुत भावुक किस्म के होते हैं, तो उनको हम लोग भक्ति योग बताते हैं कि आप किसी चीज पर, किसी एक गॉड पर या किसी पर आप डिवोशन करो, या अपने गुरु पर अच्छी तरह से सरेंडर करके उनकी बातें मानते हुए और फिर आप साधना करोगे तो आप जल्दी रियलाइजेशन कर लोगे। कुछ लोग जो बहुत ही रजोगुणी होते हैं, जो कभी इतने रेस्टलेस होते हैं कि कभी एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, उनके लिए बात बोली जाती है कि भाई आप जो है कर्म के द्वारा, क्योंकि आप रेस्टलेस हो, आप बैठ नहीं पाओगे मेडिटेशन में, आप आसन भी नहीं कर पाओगे, तो आप खूब कर्म करो, दबा के कर्म करो, लेकिन उस कर्म का फल की चिंता मत करो। बस एक चीज त्यागो कि बिना फल की चिंता किए, बिना फल के चिंता किए हुए आप कर्म करते जाओ, और उससे भी आप वहीं पहुंचोगे जहां राजयोग वाला पहुंचता है, जहां भक्ति योग वाला पहुंचता है। और इसी तरह से एक ज्ञान योग है। ज्ञान योग का ये है कि आप ज्ञान के माध्यम से आप वो लोग जो बहुत रियलाइज्ड टाइप के लोग होते हैं, जो पहले जन्म में बहुत अच्छी साधना कर चुके होते हैं, उनको अचानक ज्ञान होता है। जैसे बुद्ध को उन्होंने देखा कि कोई एक डेड बॉडी जा रही है, कोई एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये डेड बॉडी है। तो कहा ये डेड बॉडी क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उसने बताया कि ऐसे हाल ऐसे सबका होना है। तो उन्होंने सोचा कि हमारा, उन्होंने पूछा हमारा भी होना है? कहा हाँ आपका भी होना है। तो कहा ये तो फिर मर जाएंगे, फिर तो सब छूट जाएगा। कहें ये बूढ़े को देख करके उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसे सबका होना है। कहा हाँ आपका भी होना है। तो कहा ये तो फिर क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उन्होंने वहीं से सोचना शुरू कर दिया और ज्ञान उनको जागृत हो गया। तो संसार की ट्रांजिएंसी को जब हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट हियर, इवन आवर बॉडी इज नॉट परमानेंट हियर, इट इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, देन we realize that this all things will get changed one day, and even after one day we will not be here. So what is they want to go for inner journey, they think about themselves कि हम क्या करें। हाँ बिल्कुल, हम क्या करें कि जिससे हम अमर हो जाएं, जिससे हमको इस दुखों से सामना ना करना पड़े। तो फिर वो लोग ज्ञान योग के उसमें आते हैं। तो इस तरह से 5-6 प्रकार के ये हमारे योग हैं। जी बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इसमें विस्तृत रूप से ऐसे आप बताएं तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो है, आजकल तो सब कुछ गूगल में मिल तो जाते हैं, बट किसी के आपके मतलब एक्सपीरियंस, आपके अनुभव से वो सुनना, मतलब उसको एग्जैक्टली कैसे है वो सुनना बहुत अच्छा लगा।
जी। गूगल बाबा तो के हाँ, साथ यही है कि बाहर की सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, अपने अलावा आप सब चीजों का ज्ञान वहां कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, वो तो है। जी कौशल जी, और एक जो बात मतलब इसमें जो आधारित है कि मैं डांसर हूँ, कथक डांसर, एंड ऑल द डांसर्स को जो रिलेटेड है, ये तो बोलते ही है कि नृत्य भी एक योगी है, मतलब नृत्य में भी बॉडी एंड माइंड का जो कनेक्शन है, योग वो कनेक्शन होता ही है। तो हम लोग तो उसी धारणा में चलते, मगर जो प्रैक्टिस जब करते हैं हम लोग, जब रियाज करते हैं, तो हम लोग के जो टेक्निक है नृत्य पोर्शन, वो तैयारी के लिए हम लोग को तो डेफिनेटली रियाज की जरूरत है। टाइम मतलब बहुत लंबी समय तक हम लोग आपस में रियाज करते हैं। तो मोस्टली कथक डांसर्स को जो होते हैं कि पैर का काम बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसमें मसल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एडियो का एंड टैपिंग एंड उसमें एंड कोर हम लोग को बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, मतलब नहीं तो डांस तो नहीं हो सकता है, उतना एनर्जी नहीं बिल्डअप कर नहीं कर सकते हम। और मतलब प्रैक्टिस की वजह से मसल सोर भी बहुत ज्यादा पेन होते हैं, सोर हो जाते हैं। तो अब ऐसे कुछ मतलब टेक्निक्स, ऐसे इजी जो टेक्निक्स है, मतलब मैं बहुत इंट्रिकेट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कोई बहुत मतलब मोस्टली सारे जो बड़े डांसर्स और हम लोग भी योगा कुछ ना कुछ करते ही है ऐसे, बट जो इन हम लोग स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं कि जो थोड़ा सीरियस डांसर्स है, कि कैसे योगा कौन सी पॉस्चर्स या कौन सी टेक्निक से थोड़ा सा रोज थोड़ा सा उसका अभ्यास करें या रियाज कर मतलब करें, तो उसको इजी हो जाएगा। तो कोर मतलब कोर स्ट्रेंथन के लिए, एनर्जी बिल्डअप के लिए, या सब कुछ ये जी बॉडी में जी इसकी सुविधा के लिए। जी। नैनिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इन सब चीजों को करने के पहले ना थोड़ा सा हम योग 2 मिनट समझ ले कि योग है क्या। बेसिकली जो योग हम लोग समझते हैं कि जी। योग का मतलब सब यही कहते हैं, जुड़ना। हम्म। योग जो है वह युज धातु से बना है। युज और धातु। युज धातु के 3 जो है धातुओं में अर्थ हैं। एक जी। है युज संयोगो, दूसरा है युज समाधो, और तीसरा है युज संयमने। युजर योगे का मतलब होता है जुड़ना, यूनियन, इंटीग्रेशन। जो संस्कृत डिक्शनरी में अर्थ है उसकी बात बता रहे हैं। दूसरा योग का मतलब होता है युज समाधो, यानी कि आप योग जो है वह समाधि है। जी। समाधि का मतलब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा युज संयमने, योग का मतलब संयम के रूप में, कंट्रोल के रूप में ये लिया जाता है। जी। बेसिकली जो हमारा योग है वह जोड़ना का नहीं है। अच्छा। जोड़ने की बात ही वहां नहीं है, अच्छा। उसमें तोड़ने की बात है। योग अच्छा। योग जो है बेसिकली युज समाधो के अर्थ में है। और महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु, यानी कि पुरुष और प्रकृति का ये मिलन ही दुख का कारण है। बिल्कुल। तो जब ये दुख का कारण है तो इसका मतलब इसको तोड़ दोगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो डिस इंटीग्रेशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष इज योग, अकॉर्डिंग टू ओह। पतंजलि। अच्छा। अच्छा। डिस इंटीग्रेशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष इज योग। तो अच्छा। योग जो है हमारा वह है। और योग में हम किसी गॉड का रियलाइजेशन नहीं करते हैं। जो बात बोलते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के जी। मिलन का, वास्तव में जी। आत्मा न तो जीवात्मा अलग है, न तो परमात्मा अलग है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। बस ये है कि इग्नोरेंस की अवस्था में आप उसको जीवात्मा कह सकते हो, और जब वह रियलाइज हो जाता है तो आप उसको परमात्मा कह सकते हो। इतना अच्छा। ही अंतर है। बाकी ये दोनों जुड़ने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहां जुड़ाव होता है वहां टूटना भी होगा। बिल्कुल। ये तो प्रकृति का नियम है कि आप जिस चीज से प्रकृति नहीं है। जुड़ेंगे और फिर आप टूट भी जाएंगे। जब आप अलग हो बिल्कुल। जाएंगे तो फिर फायदा क्या है। जब आप जुड़ रहे हैं, इतना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, घर बार सब छोड़ दिया आपने, और अपना सारा, अपने इंद्रियों का सारा सुख छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और आप जुड़ गए, और फिर आप एक दिन टूट जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ जुड़ने का। तो हमें बिल्कुल। वो चीज, जुड़ने वाली बात जो है, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही योग का गलत है, और वो हठ योग वालों ने दिया है। जो हठ योग अच्छा। बहुत ज्ञान के बड़े छोटे स्तर पर होते हैं और केवल शारीरिक स्तर पर होते हैं, उन्होंने दिया है। वास्तव में हमारा अच्छा। राजयोग यह कहता है कि शरीर और मन को जोड़ना योग कह सकते हो आप। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा शरीर कहीं होता है, मन कहीं होता है। हम हम्म। यहाँ बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मन हमारा यही हो। जी। और बिल्कुल। जितना मन हमारा हमसे दूर है, उतना ही हम डिसइंटीग्रेटेड है। बिल्कुल। और योग की टेक्निक
टेक्निक करके हम अपने मन को और शरीर को दोनों को एक साथ ले आते हैं, और जब ये दोनों आपके बिल्कुल आपके साथ रहने लगते हैं तो हम उसको योग कह सकते हैं। लेकिन यह बहुत ही फिजिकल अर्थ है, यह बहुत ही फिजिकल अर्थों में है। तो अब हम आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। योग में जो हम लोग ये देखते हैं कि शरीर की क्रिया होती है और मन की क्रिया होती है। शरीर और मन दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी कार्य आप जब करते हैं, कोई भी कार्य करें, यहाँ तक कि आप मान लो झाड़ू लगा रहे हैं, आपका मन अगर आपके साथ नहीं है तो कूड़ा रह जाएगा, बचा रह जाएगा, ठीक से साफ नहीं होगा। उसी तरह से कोई भी कार्य जब आप करें, आप अपने मन को उससे जोड़ करके करें तो उसे हम योग कहते हैं। अगर आप किचन में भी हैं और पूरे मनोयोग से, पूरी माइंडफुलनेस से वो आप काम कर रहे हैं तो वह योग है। अगर आप माइंडफुल नहीं है और आप आसन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो वह योग नहीं है। माइंडफुलनेस इंपॉर्टेंट है, आपका मन वहां होना चाहिए। और डांस में इस चीज की बहुत आवश्यकता है क्योंकि इसके मूवमेंट जो होते हैं बड़े फास्ट होते हैं। अगर आपका मन आपके पास नहीं है तो आप कुछ का कुछ कर जाएंगे, बिल्कुल, और आपका स्टेबिलिटी भी नहीं हो पाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं बढ़ पाएगी। ये सब सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमें जरूर रखना चाहिए। दूसरा, आपके प्रश्न के साथ था कि हम क्या करें, कौन कौन से ऐसे आसन करें कि जिससे डांसर का फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत उच्च लेवल का हो। उसके लिए हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार है, वो बहुत ही अच्छी क्रिया है। अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो बहुत लाभदायी हो सकता है। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार हम करते भी हैं तो उससे हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल सकती। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अगर प्राप्त करना है तो हम आपको 5 आसन बताते हैं। अगर उन 5 आसनों में हम मास्टरी कर लें, अच्छी तरह से वह हमारे होने लगे, तो उससे हमारे पैरों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि हम एक पैर पर घंटों चाहे तो खड़े हो सकते हैं, थकेंगे नहीं। हम अपने हाथों पर चाहे तो खड़े हो सकते हैं, थकेंगे नहीं। हमारा कोर और हमारा बैक इतना मजबूत हो सकता है कि फिर वह कभी थकेगा नहीं। तो इस तरह के हमारे जो आसन हैं, उन आसनों का अगर हम अभ्यास करें तो डेफिनेटली आपको इसमें जो इंजरी होती है, और नाट्य में मैंने देखा है या इसमें डांस में इंजरी होने के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि मसल्स का ओवर यूज होता है। स्वाभाविक सी बात है कि आप, हमारे यहाँ योग में ओवर यूज नहीं होता है। हमारे यहाँ योग में होता है कि आपने उस आसन को थोड़ी देर के लिए किया, फिर दूसरा आसन आप आ गए, फिर आप तीसरे आसन पर आ गए, तो वहां पर ओवर यूज होने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन इसमें आपको वही मूवमेंट बार बार और ढेर सारे समय तक दोहराना होता है, तो आपकी उसमें मसल्स जो है वो ओवर यूज्ड हो जाती हैं और उससे इंजरी हो सकती है। उससे बचने के लिए और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी की बैलेंस बढ़ाने के लिए और फोकसनेस बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ योग में जो 5 आसन हैं और 1-2 प्राणायाम हैं, क्योंकि ब्रीदिंग का भी कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा मेडिटेशन। और अगर आधे जी, मैं इसी ब्रीदिंग के लिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोग जब एक मूवमेंट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसे टेक्निक है, जैसे कि हम लोग का गतनिकास है या ठाठ है। ठाठ में कुछ कुछ पॉस्चर्स होते हैं जिसमें पूरा ब्रीदिंग के हिसाब से हम लोग उस मूवमेंट्स को लेते हैं, चलाते हैं। तो मतलब उसमें भी इंटरकनेक्टेड है हम लोग, मतलब वो काइंड ऑफ प्राणायाम ही करते हैं हम लोग, कि उसी में ही मतलब ज्यादा अटेंशन देते कि कैसे ब्रीदिंग टेक्निक हो, क्योंकि ब्रीदिंग के ऊपर लेके ही डिफरेंट निकास हुआ है कथक में। मैं कथक की बात कर रही हूँ, बाकी सारे डांस में तो है ही, सभी इसमें है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और असल में इसीलिए हम कहते हैं कि डांस जो है वह भी योग का एक फॉर्म है, या डांस और योग दोनों में बहुत अंतर नहीं है। जो अंतर है उसकी तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे का काफी सहयोग कर सकते हैं। अब हम लोग उन आसनों पर आते हैं कि जिन आसनों के अभ्यास से आप जो है मसल्स का अगर ओवर यूज्ड हुआ है या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इन सब चीजों से आपको जो है निजात मिल जाती है। जो सबसे पहला हमारे यहाँ आसन है वह है चक्रासन। अगर आप चक्रासन करते हैं, और चक्रासन वैसे बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा टफ भी है तो अगर हम उसका नियमित अभ्यास करें तो चक्रासन बहुत आसानी से होने लगता है। और चक्रासन में पूरा चक्रासन, एक तो हाफ होता है कि आप आपका पैर और आपका हाथ ये दोनों अलग अलग है, ठीक है।
पहले पहले शुरू में हम खड़े होते हैं तो पैर और हाथ अलग अलग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज करेंगे तो पैर और हाथ एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और पूरा बॉडी एक सर्कल बन जाता है। जब वो चक्रासन बनने लगे तो आपको कभी बैक में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आपको कभी कोर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो केवल एक आसन इतना महत्वपूर्ण है, और यह आसन आपके हाथ और पैरों के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। दूसरा, हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है हनुमान आसन। हनुमान आसन यद्यपि जिसे आप स्प्लिट कहते हैं, और हमारे यहाँ डांस में सब बहुत काफी रोल आता है, क्योंकि लोग आते हैं जो डांस वाले हमारे यहाँ, तो हम लोग चर्चा करते हैं तो बताते हैं। उसमें अगर हम हनुमान आसन करते हैं तो हनुमान आसन से आपका पैर इतना लचीला हो जाता है, और पैर की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, पैर की कॉप मसल हैं, और आपका क्वाड्रिसेप्स है, सारिटोरियस, ये जितनी मसल्स हैं ये बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, और इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि आप कोई भी मूवमेंट करें, कितना भी देर तक करते रहें, अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपको कभी भी इंजरी की शिकायत नहीं हो सकती है। इतना बढ़िया और बेहतर आसन है। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ एक आसन और है, उसको हम लोग हल आसन कहते हैं। जैसे किसान जो हल का उपयोग करता है, आप देखें उसी के नाम पर ये हल आसन बना है, हल के को रिजम्बल करता है। हल आसन भी बहुत उपयोगी है। हल आसन के अभ्यास से हमारा ब्रीदिंग जो है वह बहुत अच्छी तरह से सेट हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा जोर हमारे बैक पर और चेस्ट पर पड़ता है, तो चेस्ट की मसल्स भी अच्छी तरह से खुल जाती हैं। और फिर आप इसमें घंटे 2 घंटे अगर रियाज करते भी हैं तो उससे आपको कहीं भी आपके ब्रीदिंग से संबंधित समस्या नहीं हो सकती है, और आपके बैक से संबंधित समस्या नहीं हो सकती है। ये 3 आसन ये हुए। चौथा है हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी बहुत उपयोगी आसन है। इसके अभ्यास से हमारा बैक बहुत मजबूत हो जाता है, और बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कोर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में बैक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बैक वीक है तो कोर आपका कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। बैक से ही हमारी नर्व्स जाती हैं, जो पेल्विक गर्डल है वहीं से सारी नर्व्स जाती हैं। जब आपका पेल्विक गर्डल ही कमजोर है तो वहां से जो नर्व्स जाएंगी वे भी कमजोर होंगी, तो पेट कमजोर रहेगा, आपका एब्डोमेन कमजोर रहेगा। तो इसलिए हमें अपने बैक पर, पेल्विक गर्डल पर ज्यादा जोर देना होता है, और वो अगर ठीक है तो आपका पेट भी नहीं बाहर निकलेगा। और ये सारी चीजें अपने आप ही होती हैं। जो बेली फैट होता है, साइड में हो या फ्रंट में हो, ये सब नहीं निकलता है। तो पश्चिमोत्तानासन भी बहुत उपयोगी होता है। तो इस तरह से अगर हम इन आसनों का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमें काफी इसमें मदद मिल सकती है। और अगर इसी के साथ हम हेड स्टैंड या सर्वांगासन ये भी कर लें, तो जो आप जैसे घंटे भर आप रियाज करते हैं और आप उसके बाद 5 मिनट का केवल हेड स्टैंड कर लें, तो आप ये देखेंगे कि आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। पूरी की पूरी थकावट ही आपकी दूर हो जाएगी। और फिर उससे स्वाभाविक सी बात है कि जो मसल की ओवरयूज हुई है वो भी ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद 5 मिनट का योग निद्रा या शवासन कर लें। तो शवासन बहुत आवश्यक होता है हमारे यहाँ। अगर आप शवासन कर लेते हैं तो आपका जो भी ओवर यूज हुआ है मसल्स का, वो पूरी तरह से सबसाइड हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये है। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग में ज्यादा तो नहीं, तो अगर 2 एक्सरसाइज की जाए, भस्त्रिका की जाए या कपालभाति, 2 में से एक, और एक अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। इनके अभ्यास से आपका चेस्ट जो है, चेस्ट कैविटी का पूरा यूज होता है, सारे एलोवियल्स का यूज होता है, पूरे आपके पूरा लंग्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से यूज हो जाता है। होता क्या है कि आप देखें कि अगर आप एनाटॉमी पढ़ें, फिजियोलॉजी पढ़ें, तो हमारे जो श्वास लेने की, हमारे लंग्स की जो नेचुरल क्षमता है वो लगभग 5 लीटर लेने की है एक बार में। 5 लीटर वो लेती है और 5 लीटर निकाल सकती है। इतना लंग्स की हमारे एलोवियल्स की क्षमता है। लेकिन हम लोग लेते कितना है? आधा लीटर लिए लगभग, या 1.25 लीटर, बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो यानी लगभग हम 1/5 लंग्स ही अपना यूज करते हैं, और इसीलिए हमारा बॉडी वीक होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है उतना बढ़िया नहीं होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। आप इसका अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास बेहतर तरीके से करें तो आपका लंग्स जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और लंग्स स्ट्रांग होने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी विल पावर अपने आप बढ़ जाएगी। जिसका लंग्स जो है वह वीक है, विल पावर
कमजोर हो जाती है। समझ तो गए। नाट्य वगैरह या डांस वगैरह में आप देखें कि विल पावर की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी है जी। क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ, और उसी में नहीं किसी भी क्षेत्र में आप देख लें कि विल किसी भी पावर की क्षेत्र में बहुत आवश्यकता होती है। बहुत सब, वो तो अगर सबसे बड़ी आपकी बात विल पावर ठीक नहीं है तो आप बहुत जी। अपने कार्य में एक्सेल नहीं कर सकते हैं। नहीं कर बेशक आपकी क्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। नहीं ये कर बहुत सकते अच्छा चीज है कि वह एक्सेल करने के लिए आपको जी। वो करता है। और मेडिटेशन अगर 10 मिनट कर लें तो आप में जो जैसे ये फियर होता है, एंजाइटी होती है कि हम ये कर रहे हैं, पता नहीं सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारा डांस का स्टेज पे काम चल रहा है, फिर उसमें हम कि हमारा पता नहीं लोग पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, वोटिंग होगा क्या होगा, इन सारी चीजों से आपको मुक्त होना चाहिए। यानी हम बिल्कुल। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर आप इस चीज हम्म। से मुक्त नहीं है तो आप सफलता की सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते हैं। कौन कोई सकते कुछ भी कहे, आप अपने काम में इतने मग्न हो और उसमें आपको इतनी शांति और सुकून मिले कि दुनिया को कुछ भी कहे उसका फर्क कहे। ना पड़े, तो आप ये देखेंगे कि दुनिया निश्चित रूप से आपको झुठला नहीं सकती है, गलत नहीं कर सकती है। लेकिन अगर बिल्कुल। आप अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो जी। फिर आप दुनिया के कहने से बहुत नहीं ज्यादा काम चलेगा और बहुत आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। और यह बिल्कुल। चीज मेडिटेशन से ही संभव है। मेडिटेशन बिल्कुल अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली सारी चीजों का समाधान हो जाता है। जी। बहुत धन्यवाद। अच्छा जी। तो मतलब इसी में हम बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग डांस, मतलब हम लोग का संयुक्त मुद्राओं है, और योग में भी डिफरेंट काइंड ऑफ मुद्रास का यूज होते हैं। तो बिल्कुल। और मोस्टली चक्कर में हम लोग का कथक में जो होता है चक्कर एंड द पिरामिड्स जो टर्निंग होते हैं हम लोग लेते हैं, तो हाँ। वो तो मोस्टली बोलते हैं कि हम लोग का जो ट्रेडिशन है ये चक्कर वाला जो मतलब पैटर्न है, ये मिडिल ईस्ट से आए हैं, मुगल टाइम में सूफी ट्रेडिशन से आए, क्योंकि वो लोग ऐसे अच्छा। दरवीश जो है वो लोग चक्कर लेते हैं। बट हम्म। आपको क्या लगता है कि स्पेशली हम कथक के एस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि ये जो आपने मतलब जैसे कि पिरामिड्स ले रहे हैं, तो इसके साथ जो योगा का चक्र बैलेंसिंग है उसके कुछ कनेक्शंस है, और मुद्राओं का जो हम लोग यूज करते हैं, तो योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा दोनों कुछ कुछ चीजें तो मिलते ही है, मिलते जुलते, मगर कितना उसका अलग है, या मतलब एप्लीकेशंस थोड़ा सा, क्योंकि नृत्य में हम लोग मीनिंग वाइज यूज करते हैं, कोई मीनिंग समझाना है या पता का त्रिपता का, ये ऐसे, मगर योग में उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, इसमें थोड़ा सा मतलब दूसरा होता है, एंटरटेनमेंट थोड़ा सा आ जाते हैं कि समझाना है, स्टोरी टेल करना है, कुछ बातें बोलना है, बट उसमें स्पिरिचुअलिज्म आ जाते हैं कि इस मुद्रा से ऐसे मिलेगा, इस नाड़ी का ये कनेक्शन। तो मतलब दोनों मुद्राओं का मतलब आप कैसे बोल सकते हैं कि योग का मुद्रा और नृत्य का मुद्रा, तो ये और चक्र बैलेंसिंग दैट, वो मुझे थोड़ा सा बताइए अगर आप। जी जी, पहले हम लोग समझ लें हमारे यहाँ योग के हिसाब से मुद्रा किसको कहते हैं। और मुझे लगता है कि जैसा आप अभी चर्चा कर रही हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ योग में मुद्रा कहते हैं वही आपके यहाँ भी कहते हैं। हमारे अच्छा। यहाँ मुद्रा कहते हैं, मुद्रा उस चीज को कहते हैं कि आपके मन में जो भावनाएं हों आप उनको व्यक्त न करें, उनको शरीर से दिखा दें। इसको हम लोग मुद्रा कहते हैं कि जैसे अच्छा। आपके अंदर, हाँ, जैसे आपके अंदर क्रोध है, मान लो आप क्रोध को दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, और जी। आपके अंदर बेशक क्रोध अंदर ना हो, लेकिन आप पब्लिक को दिखाना एक्टिंग। चाहते हैं कि मैं जी बहुत जी, उसी क्रोधित का हूँ, अभिनय बहुत अभिनय क्रोधित करना। हूँ। तो आप किस तरह से आप उसको प्रदर्शित करोगे? आप अपने जी, चेहरे को लाल करके, अपने हाथ को और इस तरह से चेहरे को बना करके ही आप प्रदर्शित कर पाओगे उस तरह का। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसे ही हमारे यहाँ मुद्रा कहा गया है। जी। तो अच्छा। निश्चित रूप से वहां पर भी यही भाव भंगिमा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नृत्य में भी आप मुद्राओं के माध्यम से जनता को ये चीज बताना चाहते हैं, बिना कुछ बोले हुए आपके बिल्कुल। एक्सप्रेशन से, बॉडी के एक्सप्रेशन से सामने वाला समझ जाए कि आप जी। क्या कहना चाह रहे हैं। इसी को बिल्कुल। मुद्रा कहते हैं। जी। मुद्राओं का निश्चित रूप से बहुत अच्छा रोल होता है हमारे यहाँ। और मुद्रा एक ऐसी चीज है कि जिसके अभ्यास से आप अपने शरीर और मन दोनों की स्थिरता प्राप्त करते हैं। शरीर भी आपका स्थिर होता है, मन भी स्थिर होता है, लेकिन अच्छा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मन को स्थिर करना होता है। अगर आपको क्रोध की मुद्रा दिखानी है और आपका मन स्थिर नहीं है तो आप क्रोध दिखा नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब पहले आपको मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन करना। जब आपका स्थिर है तब आप बाहर शरीर से उसका प्रदर्शन कर लेते हैं। बिल्कुल। मनुष्य के जितने भी काम हैं, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य और पशु में सिर्फ दो विशेष अंतर हैं। एक अंतर है मनन का और चिंतन का,
यानी थिंकिंग का। बिल्कुल। अन्य प्राणी भी थोड़ा सा सोच लेते हैं। अगर चींटी अपने घर से निकली है सुबह, तो शाम को अपने ही घर पर आएगी, अपने ही बच्चों के पास आएगी। बिल्कुल। थोड़ा सा इतनी स्मृति उनमें होती है। बिल्कुल। लेकिन ये कहो कि वो चींटी वह मून पर पहुंच जाएगी, मार्स पर पहुंच जाएगी, तो नहीं कर सकती है। लेकिन मनुष्य जो है वह अपने थिंकिंग से, अपने इंटेलेक्ट से मार्स पर तक पहुंच जाता है और नए नए चीजों का आविष्कार कर लेता है। जी। दूसरी जो है उसकी क्वालिटी है वह वाणी की है, एक्सप्रेशन की है। वह लिख सकता है, लोगों को समझा सकता है, लोग उसको समझ सकते हैं। ये दो मेन क्वालिटीज हैं, दो मेन अंतर हैं मनुष्य और अन्य पशुओं में, और इन्हीं की वजह से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और देखें, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमारा जो मन है वास्तव में वही इंपॉर्टेंट होता है। मनुष्य के पास मन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति है। मन ही शरीर को चलाता है। शरीर मन को नहीं चलाता है, मन शरीर को चलाता है। अगर आपका मन स्वस्थ है, मन एकाग्र है, मन संतुष्ट है, मन शांत है, तो आपका शरीर भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, हम लोग सामान्यतः कहते हैं कि हमारे शरीर में कम फ्लेक्सिबिलिटी है या ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों ऐसा होता है? उन लोगों का जिनकी मन की बहुत रिजिड होता है, जिनका मन, उनका शरीर बिल्कुल रिजिड होगा। अच्छा। जिनका मन बहुत फ्लेक्सिबल है उसका शरीर भी फ्लेक्सिबल होगा। बच्चों का शरीर क्यों फ्लेक्सिबल होता है? क्योंकि उनका मन बहुत फ्लेक्सिबल होता है। उनको आप एक थप्पड़ मार दो, रोएंगे, 2 मिनट बाद फिर आपको मम्मी पापा करके आपको। लेकिन मैं अगर किसी को अभी बड़े को मार दूं तो वह जीवन भर याद रखेगा और जीवन भर सोचेगा कि हम इसका कैसे जो है रिवेंज लें, कैसे इसका हम रिएक्शन करें। तो हमारे अंदर रिजिडिटी आती जाती है, और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, रिजिडिटी बढ़ती जाती है, तो वैसे हमारी बॉडी की भी रिजिडिटी बढ़ती जाती है। उसी तरह से हमारे यहाँ मुद्राओं में है। मुद्राओं का, जब आपका मन ठीक रहेगा, मन फ्लेक्सिबल रहेगा, मन फोकस्ड रहेगा, तो मुद्राएं आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चाहे वह नृत्य हो, चाहे वह योग हो, दोनों में उपयोगी होता है। लेकिन आप ये कहें कि मुद्रा से आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुद्रा जैसे हमारे यहाँ, वैसे तो हमारे यहाँ पुराने ग्रंथों में इन जो हाथ की मुद्राएं ऐसी हैं और ऐसी हैं, इस तरह की मुद्राओं का जिक्र नहीं है पुराने ग्रंथों में। लेकिन नए ग्रंथों में कुछ जिक्र आ गया है। वो कहते हैं कि ये ज्ञान मुद्रा है और आप ऐसे बैठेंगे तो आपको ज्ञान आ जाएगा। अब जिसको हाथ नहीं है मान लो, फिर उसको नहीं इस ज्ञान आएगा। बिल्कुल। या आप पशु पक्षियों का दोनों का इस तरह उंगलियों को मिला दो तो उनको ज्ञान आ जाएगा। बिल्कुल वही। तो जोड़ दो अगर आप उनको तो उनको ज्ञान आ जाएगा। तो ये तो एक केवल जो है एक आप सिंबॉलिक चीजें हैं, एक समझाने के लिए चीजें हैं। बाकी इनका बहुत स्पिरिचुअल मतलब नहीं होता है। इनसे आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही चीज है कि आपको संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाए कि ये संसार ट्रांजिएंट है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, माई बॉडी इटसेल्फ। हम लोग एक शरीर को दूसरे शरीर को जब हम देखते हैं तो बड़ा आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये शरीर क्या है? स्किन ही इसका बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जाओ तो ये गार्बेज है। बिल्कुल पूरा गार्बेज है। टट्टी, पेशाब, खून, पस सब इसी में भरा पड़ा है। बिल्कुल। कितनी गंदगी इसमें भरी पड़ी है। आप इसका स्किन निकाल दें तो आप इसको देखने का मन नहीं करेगा, है ना? तो ये गार्बेज है। तो ये एक माया जिसको हम कहते हैं। जैसे आप देखें कि जंगलों में हाथी को कैसे फंसाया जाता है? एक गड्ढा खोद देते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, और उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी लकड़ियां रख देते हैं, और उसके ऊपर एक ऐसा बना देते हैं, हथनी का एक आकार चित्र बना देते हैं। वो हाथी जाता है, वो सोचता है कि हथनी है, और उसके पास जाता है, वो गड्ढे में कूद जाता है, गिर जाता है। और जब गड्ढे में गिर जाता है तो कुछ दिन उसको गड्ढे में ही वो लोग रखते हैं, और फिर जब वो बहुत कमजोर हो जाता है तब फिर उसको निकालते हैं, तो फिर उसको ट्रेन करते हैं। यही हाथी को पकड़ने का तरीका है। वैसे ही हम लोग संसार में हैं कि इसी तरह से बाहर की चीजों को देख करके हम फंसते हैं। योग कहता है कि नहीं, आप रियलिटी में जाओ। जैसे आप शरीर के अंदर एक्सरे से देख लेते हैं
कि शरीर के अंदर क्या है, एमआरआई में देख लेते हैं कि शरीर के अंदर क्या है, वैसे आप अपनी थर्ड आई, विवेक के आई से देखें कि शरीर में, इस संसार में, इसमें जहां हम फंसे हुए हैं, ये है क्या रियलिटी में। और जब आपको इसकी रियलिटी का ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से आपको इससे अपने आप ही जो है डिटैचमेंट होगा कि ये चीजें सत्य नहीं है। इससे आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्स फॉर मेडिटेशन एंड समाधि, बट एवरी कंसंट्रेशन इज नॉट समाधि एंड इट डज नॉट लीड टू योगा। बहुत लोग हैं जो व्यापारी लोग हैं, मैं देखता हूँ, बड़े कंसंट्रेट होते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं, एक चीज पर लग जाते हैं तो उसी चीज पर सोचते रहते हैं। हमारे ढेर से ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यापारी मित्र हैं कि उनको देखते हैं कि इतना लगे रहते हैं कि रात दिन उसी पर सोचते रहते हैं। तो क्या वो स्पिरिचुअल होते हैं? नहीं। बहुत टेंशन लेते हैं, रात में नींद नहीं आती है, रोते हैं, गाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, फिर अपनी टेंशन को निवारण के लिए शराब पीते हैं, टेंशन के निवारण के लिए फिल्म देखते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो अगर वो स्पिरिचुअलिटी होती तब तो फिर उनको दुख नहीं होना चाहिए था। अगर वो कंसंट्रेशन उधर लीड करता है, या हमारा नृत्य ही है, इसमें फोकसनेस की आवश्यकता है, लेकिन अगर इसमें फोकसनेस की आवश्यकता है तो क्या इससे हम, जो कहा जाता है कि ये सब ट्रांस की ओर ले जाते हैं, तो अगर हम ट्रांस की ओर चले जाते हैं इससे, तब तो फिर हमें दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें दुख होता है तो इसका मतलब है कि सारे कंसंट्रेशन ट्रांस की ओर नहीं ले जाते हैं। ओनली दैट कंसंट्रेशन व्हिच gives you the reality of the world, by which you know the reality of the world, that leads you towards the self realization or yoga। तो ये मूलभूत अंतर होते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये बहुत, मतलब मैं जानती नहीं थी इतना, मतलब सारे कुछ इतना डायमेंशन, इतना मतलब नॉलेज जो है, मतलब ये सारे इंफॉर्मेशंस तो मेरे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मुद्राओं का, मुझे लगता था कि अभी तक की मुद्राओं का डेफिनेटली कुछ एप्लीकेशन है, उसका कुछ मीनिंग है, और डेफिनेटली मुद्रा गड़बड़ हो जाएगा तो मतलब ध्यान भी थोड़ा सा उसमें डिफर हो सकता है। बट आप बोल रहे तो उसमें मतलब इम्पोर्टेंस है, बट उतना नहीं है। तो ये सब देखिए, इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है। इन द बिगिनिंग आप एक बच्चे को काखा गाखा एबीसीडी सिखाते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस ऐसा थोड़ी है। एमए वाले के लिए लगता है कि ये तो बचकानी बात है, लेकिन शुरुआत के लिए तो जरूरी है ही है। बट यह है कि आप ये कहें कि उसी से ही आप एमए पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एबीसीडी जान करके आप एमए कर लेंगे तो वो ऐसा नहीं है। आपको और भी चीजों को जानना होगा और रियलिटी को जानना होगा। थैंक यू सो मच। एक एक दिशा, मतलब पूरा एक एक डायरेक्शन ओपन हो रहा है इसके माध्यम से आपके। जी, तो कौशल जी, आप योगा थेरेपी में मतलब आप बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड आपके सारे मतलब उसमें है। तो हम लोग की डांस थेरेपी भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बट मुझे लगता है कि जो मुझे लगा कि डांस थेरेपी ये शुरू हुआ है 1960 के आसपास इन द अमेरिकन डांस थेरेपी एंड मूवमेंट एसोसिएशन के उनके थ्रू एंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो डांस थेरेपी इज बेसिकली अ नॉन वर्बल मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। जैसे हम भी कुछ मतलब इसमें काम किए हैं, कुछ मतलब ऐसे ऑर्फेनेज में जाके उन लोग को जो मतलब उतना फिजिकली डिसेबल जो है ना, उन लोग के लिए एक प्रोजेक्ट की थी। तो वो डांस मूवमेंट के थ्रू ही मतलब मैंने कोशिश की थी जितना कर सकती हूँ मैं। तो मतलब ये थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच है, आई विल से दैट। ये मतलब कुछ भी नहीं, डांस हम लोग जो क्लासिकल डांस करते हैं वो ही उसी का कुछ ऐसे ऐसे लेके मतलब स्पेशल ये लेके उसको बनाया गया है, एक फॉर्मेट बनाया गया है। तो एक मतलब ये मॉडल जो है तो डांस थेरेपी का ये बहुत अभी पॉपुलर है। मतलब बहुत कुछ इसका साइकोथेरेपी एक बहुत एप्लीकेशन होता है कि आप डांस थेरेपी करो, इसका मतलब ऐसे है। तो योगा थेरेपी मतलब क्या है? मतलब योगा क्या मतलब योगा थेरेपी योगा जैसे ही है या उसका भी ऐसे कुछ मतलब क्या मतलब उसका मतलब कैसे आप लोग अप्लाई करते हैं, आप क्या करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जैसे आपने कहा 1960 से ये टर्म ज्यादा डेवलप हुआ है अपना डांस थेरेपी का। हमारे यहाँ योग थेरेपी तो बहुत पहले से रही है जी, वो तो बहुत पुरानी तो मतलब। और हमारे यहाँ जो है पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है वैदिक टाइम से। जी हाँ, कि प्राणायाम अभ्यासेन युक्तेन सर्वरोग समुद्भवा। वहां मैंने लिखा गया है कि सर्वरोग क्षयो भवेत्। जब आप प्राणायाम का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं तो आपके सारे रोगों का क्षय हो जाता है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। और फिर ये लिखा है कि अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा। यदि आप गलत तरीके से अभ्यास करते हैं तो सारे रोग पैदा भी हो जाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि उस समय भी ये बात थी कि जो है रोग थे और उन रोगों को इनसे दूर किया जाता था। यानी रोग थे तभी तो दूर किया गया था ना। ये कहा गया है कि प्राणायाम करेंगे तो ये रोग दूर हो सकते हैं। तो ये बहुत प्राचीन काल की बात है। तो इसका मतलब योग थेरेपी बहुत पहले से ही थी। वास्तव में अगर आप देखें कि योग जो है बेसिकली उसको हम यह नहीं कह सकते हैं कि थेरेपी के रूप में नहीं कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, थेरेपी वो एक बाई प्रोडक्ट हम जरूर कह सकते हैं कि जैसे आजकल आप देखें कि हमारा जो जीवनचर्या है लोगों की, वह बहुत ही अव्यवस्थित जीवनचर्या है। बहुत फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रह गया है, सारा मैकेनिकल हो गया है। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत मैकेनिकल हो गया है। हम घर से निकले तो निकलते ही हमने लिफ्ट लिया, फिर नीचे गए, फिर गेट पर गए, गाड़ी खड़ी है ड्राइवर्स के साथ, फिर हम गाड़ी से गए, फिर हम अपने ऑफिस गए तो वहां भी लिफ्ट लेकर के हम ऊपर चले गए और फिर बैठ गए एसी में। तो बड़ी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है हमारी। बिल्कुल। उस वजह से हमें स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमारा शरीर और मन दोनों का कोऑर्डिनेशन है हमारा पर्सनैलिटी, और अगर हम दोनों का बैलेंस्ड अप्रोच नहीं करते हैं, हम मन का तो बड़ा ओवर यूज कर रहे हैं और शरीर का हमारा यूज ही नहीं है, तो इम्बैलेंस तो पैदा ही होगा, तो रोग तो पैदा ही होगा। तो योग क्या करेगा आपको कि अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो आप कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ही, आसन करेंगे ही। आसन इज ए फिजिकल एक्सरसाइज। तो अब पहले आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, अब आप एक्सरसाइज करने लगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो हाई था वो तो कम हो ही जाएगा। तो योग से ब्लड प्रेशर नहीं कम हो रहा है, माने आप आसनों से ब्लड प्रेशर नहीं कम हो रहा है, आपकी वो आदत जो गंदी आदत थी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाली वो छूट रही है। तो इसलिए अपने आप ही आप वॉक भी करते तभी भी आप ठीक हो सकते थे, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो कहने का मतलब है अच्छा दूसरा, हम मन को बहुत ओवर यूज कर रहे हैं, मन बहुत टेंशन में और स्ट्रेस में रहता है जी। अब उसके लिए इस संसार में कौन सी दवा है? आज तक तो कोई दवा ही नहीं बनी है। जो दवा बनी हुई भी है, मॉडर्न साइंस बनाता भी, वो क्या बनाता है, वो आपके ब्रेन को नम कर देता है, थोड़ा सा आप सोचना विचारना कम कर देते हैं, नम्बनेस की वजह से कम कर देते हैं। लेकिन जब उस दवा का प्रभाव हटता है तो फिर तो आप वैसे सोचने लगते हैं। बिल्कुल। तो उससे आपका सोचने की प्रक्रिया थोड़ी कम हुई। जैसे आप रात में बहुत टेंशन में हैं और सो गए, फिर आप सुबह उठे, जब आप रात में टेंशन में हैं, जब आप सो गए तो आप सारा टेंशन भूल गए जी। लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो सारा टेंशन थोड़ी आपका चला गया है, फिर आपको याद आ जाएगी वो बात, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे जी। तो, लेकिन अगर आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप वो टेंशन रिटेन्ड ही नहीं होगा, आपके ब्रेन में वो रिटेन ही नहीं होगा, आपकी स्मृति में रिटेन ही नहीं होगा। और जब रिटेन नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आपका टेंशन रुकेगा ही नहीं ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक रुकेगा ही नहीं। जब ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं तो आप खुश रहेंगे। और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो सारा आजकल जो भी डिजीजेस हैं सब साइकोसोमैटिक ही तो है ज्यादातर। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर साइकोसोमैटिक है, आपका डायबिटीज साइकोसोमैटिक है, जितने भी आप डिजीजेस ऑलमोस्ट रख लें सब साइकोसोमैटिक है। तो अगर आपने अपने मन के पक्ष को ठीक कर लिया, अब आपको स्ट्रेस जो है रिटेन ही नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अब आपका स्ट्रेस आया और फिर चला गया। स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अगर आपका वो नहीं रुका तब आप क्या करेंगे? फिर आपको साइकोसोमैटिक डिजीज ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि ये बाई प्रोडक्ट है। उसी हिसाब से अगर आप ये देखें कि हमारे यहाँ योग थेरेपी में कि जब आप योग का अभ्यास करना शुरू करते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन ये सब करना शुरू करते हैं, तो आपके रोग अपने आप ही कम होने लगते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो ये बाई प्रोडक्ट में होता है, ये नहीं है कि आप ये आसन कर लेंगे तो ये रोग ठीक हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। अब डांस थेरेपी में आप जो कर रहे हैं, डांस थेरेपी में वह जो कुछ भी हमको इंजरी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कर रही हूँ क्योंकि संजीव भट्टाचार्य जी, हाँ, मेरे सीनियर जैसे दादा जैसे हैं, ही इज अ वेरी फेमस मणिपुरी एंड क्रिएटिव डांसर। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ विथ योगा डांस? योगा डांस जी, योगा और डांस अलग अलग है या इसमें ये कह रहे हैं, या दोनों एक? कोई आजकल डांस योगा भी चला हुआ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो ऐसे इसी दिशा में पूछ रहे हैं व्हाट इज द कनेक्शन विथ योगा डांस। मतलब जी, मतलब अभी डिफरेंट टर्म ऐसे यूज होने लगे हैं ना, नृत्य योगा, योगा डांस। हाँ तो अब देखिए, डांस और योगा का अगर आप उसका प्रश्न जो आपका है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये।
अगर इसमें ढंग से इसको देखेंगे तो काफी समय लग जाएगा, और हमारे पास समय की कमी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेकर के बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि हठ योग शुरू हुआ, हठ योग बॉडी से शुरू हुआ, राजयोग सीधा माइंड से शुरू हुआ। अब वैसे ही हमारा जो डांस है वह बॉडी योग तो है ही है, बॉडी का योग तो करते ही हैं उसमें, और माइंड को भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बिगिनिंग में वह डेफिनेटली जो है योग है, क्योंकि उसमें आप बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका माइंड से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। नॉर्मली आजकल जो हमारा हठ योग है उसमें माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लेकिन डांस में बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर योग होता है। लेकिन उस योग से आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं पहुंच सकते हैं। जो हमारे योग का मेन टारगेट है सेल्फ रियलाइजेशन, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। वह एक लेवल तक, फर्स्ट लेवल तक तो आपको योग में पहुंचा देगा वो, लेकिन अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन लेना है तो आपको मेडिटेशन, डिटैचमेंट, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और देन इनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? इनलाइटनमेंट का मतलब है कि आप माइंडलेस हो जाते हैं। माइंडलेस का मतलब यहाँ पर, माइंडलेस का मतलब होता है कि नो थॉट्स, आपको थॉट नहीं आते हैं। और ये माइंडफुलनेस टू माइंडलेसनेस, जी, हाँ, माइंडफुलनेस टू माइंडलेसनेस। और आपका अगर आप ये देखें कि डांस में तो यही होता है, उसमें भी हम माइंडलेस हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, वो वैसे ही, जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वह योग तो है ही है, डेफिनेटली एक प्रकार का योग है। और आप देखें, हम लोग जब एक चीज अभ्यास कर रहे, कोई एक छोटा सा बंदिश या टुकड़ा, तो उसको इतने बार अभ्यास करते करते ऐसे हो जाते हैं, तो आप स्टेज में जब परफॉर्म करने जाते हो तो गुरु लोग ऐसे ही बोलते कि जो चीज ज्यादा रियाज कर किए हो उसी को परफॉर्म करो, क्योंकि वो चीज ऐसे बैठ जाते हैं कि हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे करें उसको, या मतलब उसको शरीर में ऐसे बैठ जाते हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस स्थिति में डेफिनेटली यह योग है उस लेवल तक, लेकिन ये बहुत छोटा लेवल है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप रात में कोई टेंशन लेके सोएं, तो सोते समय तो आपको टेंशन भूल जाएंगे, लेकिन फिर सुबह उठेंगे तो फिर टेंशन आपको आ जाएगी। तो उसी तरह से जब हम डांस या आदि करते हैं, या योगा या हठ योगा आदि करते हैं, तो हम उस समय के लिए उनसे तो अलग हो जाते हैं समस्याओं से, लेकिन जहां हमने वो थोड़ी देर के लिए छोड़ा, फिर वो समस्याएं आ जाती हैं, एकदम फिर मन हमको परेशान करने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ योग में जो उसका हायर लेवल है, एनलाइटनमेंट लेवल है, उसमें फिर आपको मन कभी परेशान नहीं करता है, क्योंकि सारी जो मन हमारा है वह बेसिकली जो भी हमारे मन है, दिस इज आवर ओन क्रिएशन। इस संसार में एक ही चीज ऐसी है कि जिसको हम क्रिएट करते हैं, बाकी सब कुछ प्रकृति का क्रिएटेड है। केवल मन एक ऐसी चीज है जो हम क्रिएटेड करते हैं। हम क्रिएट करते हैं सुख और दुख, हम क्रिएट करते हैं कि जिस चीज को आप सुख मानते हो उस चीज को हम दुख मान सकते हैं। बुद्ध जो है उसी राजपाट छोड़ करके चले गए, राजपाट को दुख समझते थे। अशोक उसी राजपाट को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों की हत्या करवा देते हैं। अजात शत्रु उसी समय, अजात शत्रु अपने बाप का सिर कटवा देता है। तो कहने का मतलब उसी राजपाट के लिए, एक राजपाट को छोड़ करके सुख मान रहा है, एक राजपाट को प्राप्त करके सुख मान रहा है। तो कहने का मतलब राजपाट में सुख नहीं है, सुख हमारे माइंड की थिंकिंग में है। और अगर आपको थिंकिंग पर कंट्रोल हो गया तो सुख दुख पर कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो जो एनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट है कि यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, what you should think you think, and what you should not think, that thought doesn't come to you. This is योग, रियल योग, enlightenment योग। बाकी जो निचले लेवल वाले हैं उसमें हम बाद में फिर से अपने मन की समस्याओं में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। जितनी देर हमने किया उतनी देर तो हम अलग रहे समस्याओं से, लेकिन फिर हम समस्याओं में आ जाते हैं। तो ये बेसिक अंतर है दोनों। संजीव दा फिर से एक बार पूछे हैं कि उनको थोड़ा सा मतलब वो इतने मेडिटेशन बहुत सारे हैं, मुझे लगता है। थैंक यू संजीव दा, बिकॉज व्हेन वी डांस समटाइम्स पीपल कैन थिंक दैट वी आर डूइंग योगा मूवमेंट्स टू, and when we watch yoga at that time we can feel the dance movements too. Dance is a dynamic meditation, so how we differentiate yoga and dance? संजीव जी, मैंने जो बताया मेरे ख्याल से उसमें आपको समझ में आगे आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि देखिए, बॉडी का आपका मूवमेंट है और वो उस तरह का आप पोज मान लो कर भी लेते हैं, तो इससे आपका मन थोड़ी कंट्रोल हो जाता है। बॉडी और माइंड का दोनों का सिंक्रोनाइजेशन आप कर रहे हैं, लेकिन
उस सिंक्रोनाइजेशन से आपका उतने से ही मात्र आपका मन और कंट्रोल में हाँ, नहीं आ जाएगा, आप थॉटलेस नहीं हो जाओगे। थॉटलेस व्हाट इज मतलब अभ्यास से नहीं होता है। एनलाइटनमेंट और समझ लें अच्छी तरह से, जैसे हम लोग गहरी नींद में सोते हैं तो गहरी नींद में हमें कोई थॉट नहीं आता है, वी आर थॉटलेस इन द गहरी नींद, इन द डीप स्लीप, नॉट इन द ड्रीम। उठने से फिर से वो आ जाते हैं अंदर। तो जब आप उसमें डीप स्लीप में सोते हैं तो योर थॉट्स आर ऑफ। बिल्कुल उसी तरह से जब आप जग करके थॉट्स को ऑफ कर लेते हैं तो उसको हम इनलाइटनमेंट कहते हैं, समाधि कहते हैं। ठीक है, बैठे बैठे चलते फिरते आप ऑफ कर लें। और बाकी में तो हम ऑफ कर लेते हैं, डांस में और योग आदि में कर लेते हैं, लेकिन वो फुल्ली नहीं हो पाता है। फुल्ली तो तभी होता है कि जब आप मेडिटेशन और समाधि में इतना डीप चले जाते हैं कि यू बिकम थॉटलेस। वो उतनी देर के लिए जितना देर आप चाहें, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन अगर आप बैठे हैं तो आप थॉटलेस बने रहेंगे। लेकिन बाकी समय में तो बाकी आप डांस कर लें या कुछ कर लें तो आप थॉटलेस तो नहीं बने रहेंगे जीवन भर, या 10-20 दिन, 25 दिन तो थॉटलेस नहीं बने रह सकते हैं। योगी थॉटलेस बना रह सकता है। केवल अपने छोटे मोटे जैसे कामों का है, टॉयलेट जाना है तो बिना थॉट के तो आप जा नहीं पाएंगे, उसमें तो आपको थॉट को अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अदर टाइम में जिस ऐसे थॉटलेसनेस अचीव करना, उस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करना, तो ये तो मतलब वो सब साधक एंड सेंट जो मुनि ऋषि थे उन लोग ही मिल सकते थे, उन लोगों के ही। मतलब आज के दुनिया मतलब कैसे हम लोग, इज इट पॉसिबल टू अटेन दैट लेवल ऑफ मतलब टोटली थॉटलेस माइंड? क्योंकि मेडिटेशन में भी वही बहुत सारे लेवल्स होता है, बहुत कुछ होता है। तो मतलब और डांस भी, जैसे कि म्यूजिक एंड डांस बोलते हैं, इज अ काइंड ऑफ पूजा के ही मतलब हम लोग का ही एक माध्यम है, मेडिटेशन का ही एक माध्यम है। तो मतलब डांस के आपको क्या लगता है, मतलब एज ए डांसर ऑल्सो वी कैन जस्ट अचीव दैट लेवल ऑफ थॉटलेसनेस? ऐसे हो सकता है क्या, पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग प्राप्त कर सकता है। और ये देखिए, मैं आपको मैंने बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि केवल यही एक ऐसी चीज है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, बाकी और कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर हम ये कहें कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, तो आप तो नहीं बन जाओगे, सारे लोग तो नहीं बन जाएंगे, एक ही आदमी होगा वो। और इसी तरह से दुनिया की कोई भी चीज जो है आपके पूरी तरह से वश में नहीं आ सकती है। आप कहें कि सूरज आज 7:45 पर निकलेगा तो क्या आपकी बात मान लेगा? आप कहें कि अग्नि अब तुम ठंडी हो जाओ तो क्या वो ठंडी हो जाएगी? आप कहें हे समुद्र तुम सूख जाओगे तो क्या वो सूख जाएगा? यानी इस संसार में हम बहुत ज्यादा, हमारा कुछ बहुत लिमिटेड है, हमारा वर्क है। हम बहुत ज्यादा इस संसार में नहीं करते हैं। जो लोग हाथ पैर मारते हैं वो बिना मतलब मारते हैं, बिना मतलब संसार में ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो बदल देते, बिना मतलब हाथ पैर मारते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि कुछ नहीं होता है, रिजल्ट जो है वह 0 होता है। बुद्ध अपने जीवन काल में केवल बिहार का थोड़ा पार्ट और यूपी का थोड़ा पार्ट और थोड़ा नेपाल के पार्ट में, इतने में ही घूमे थे, लेकिन आज वो पूरे विश्व में विख्यात हैं। और ढेर सारे लोग मेरे मित्र हैं जो हर महीने वर्ल्ड घूमा करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है। तो शरीर को घुमा देने से बहुत कुछ नहीं होता है। बेसिकली आपका मन अगर घूम गया, मन स्थिर हो गया, तो आप अपने आप घूम जाते हैं। जैसे बहुत बड़ी साधना की बात होती है, मतलब बिल्कुल वो अटेन करना, मतलब वो भी मुझे लगता है कि अभ्यास के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि ओनली प्रैक्टिस। और उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो मिरेकल है या किसी की मदद से होता है, किसी की कृपा से नहीं होता है। ओनली रियाज, मतलब हम लोग के हिसाब से जो रियाज बोलते हैं प्रैक्टिस थ्रू, उसी और वो धीरे धीरे ही होता है। जैसे आपने एक प्रश्न आपने उसमें बाद में अपने बात में किया था कि मेडिटेशन शुरू करते हैं तो मन बहुत घूमता है। भाई अगर मन ना घूमता होता तो हम मेडिटेशन करने बैठते ही क्यों? मन को ना घूमे इसीलिए तो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो घूमे कहीं। आप अगर आपके पास जो है आपका शरीर स्वस्थ है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? जाने का कोई सवाल ही नहीं है। आप अस्वस्थ होते हो तब डॉक्टर के पास जाते हो। आपका मन बहुत घूमता है इसलिए आप मेडिटेशन पर आते हो। एकदम और फिर धीरे धीरे करते करते आपका अपने आप ही आप थॉटलेसनेस आ जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सारे दिशाओं में, मतलब आज थोड़ा सा ये ओपनिंग, मतलब माइंड ओपनिंग एंड थॉट ओपनिंग एक डिस्कशन हुआ है आपके साथ। थैंक यू सो मच।
आपने मतलब इनविटेशन एक्सेप्ट किए हैं आज। थोड़ा सा आपके इनवैल्यूएबल टाइम से भी यू कैन जस्ट गेट आउट सम टाइम एंड टू बी हियर विद अस टुडे। नहीं थैंक यू नहीं सो नहीं मच। अनिका जी, ये तो आपका आपका प्यार था, आपका इनविटेशन था, और निनाद फाउंडेशन और आप दोनों को हम जो है अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें थैंक यू। समय दिया, और नहीं, उन सारे श्रोताओं का भी हम आभार व्यक्त करते जी हैं जो हमको जी सुनते जी रहे। अच्छा लगा या जी खराब लगा वो तो बात अलग है, लेकिन सुनते रहे जी ध्यानपूर्वक, तो हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। जी। और कोविड सिचुएशन में एक बार लास्ट एक छोटी सी सवाल, कोविड सिचुएशन में मतलब क्या आप मेडिटेशन एंड प्राणायाम इसके थ्रू ही मतलब अपने मन को शांत रखना जो होता है ना, अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी है जो अपने मन को शांत रखना जी क्योंकि शरीर तो ज्यादा चल नहीं रहा है, तो मन को ही शांत रखना है। जी जी। बेसिकली कोविड में इस सिचुएशन में आप देखें कि क्या है, सब लोग अल्टीमेटली तो एक ही रास्ता ही बचता है योग के अलावा, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। प्रकृति ही कह रही है कि आप ज्यादा मत घूमो टहलो, अंदर रहो। जी जी अंदर का जी। मतलब आप अपने अंदर की ओर आना शुरू करो। हम्म सोशल डिस्टेंसिंग यानी आप अपने अंदर की ओर आना। और हमारे यहाँ योग में इस बात का जिक्र बहुत पहले से हुआ है। योग में हम्म बाधाएं क्या गिनाई गई हैं, स्वामी स्वात्माराम बाधाओं के गिनाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगाश्च लौल्यम च खट विरयोगो विनश्यति। वो छह चीजें बताते हैं। एक चीज उसमें ये है कि आप बहुत ज्यादा सोशलाइज ना करें। बहुत ज्यादा सोशलाइज करेंगे तो आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, मन बहुत भटकता रहेगा। तो वो हम्म प्रकृति अपने आप खुद ही कर रही है कि आप बहुत हम्म सोशलाइज ना करें। दूसरा, आप देखें कि कितना छोटा सा वायरस है, उसने पूरे वर्ल्ड को तंग कर दिया है, हम्म, बिल्कुल घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। अब इसमें अभी कोई दवा भी नहीं बन पाई है, तो क्या इलाज है? और जबकि नेचर ने हमें खुद ही उसका इलाज दिया हुआ है, सारी चीजों का नेचर ने हमें खुद इलाज दिया हुआ है। हमारी इम्यूनिटी नेचर ने हमें खुद अपने आप दी हुई है, वो किसी के कहने से नहीं मिली हुई है, वो सबको मिली जी हुई है। जी पशुओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो बहुत नेचुरल ढंग से रहते हैं। हम एकदम लोग इतना अननेचुरल ढंग से रहते हैं कि हमारी नेचुरल जो इम्यूनिटी है वही लॉस हो गई है। एकदम उस एकदम। नेचुरल इम्यूनिटी को लाने में आपको अपने आप ही योग मदद करता है, और उसमें मेंटल इम्यूनिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मेंटली इम्यून हैं और बिना मेडिटेशन के हम्म, यू कैन नॉट अचीव मेंटल इम्यूनिटी। बिल्कुल आपको कोई जो है क्रिटिसाइज कर रहा है एंड यू डोंट हम्म, रिएक्ट, दिस इज मेंटल इम्यूनिटी। देन बिल्कुल देन नथिंग वायरस कैन आई मीन आक्रमण कर ही नहीं सकता है आपके ऊपर कोई वायरस। अगर आप बिल्कुल वो हैं, रिएक्शन लेस हैं, तो आपके सारे हम्म, जो है जितने भी हैं वो सब रिएक्शन लेस हो जाएंगे, वो आप पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी ये नेचर ने दिया हुआ है। हम उसको इतना ज्यादा बाहर की ओर फंस करके हमने उसको हम्म, तबाह कर दिया है, गलत गड़बड़ कर दिया है। आप मेडिटेशन और योग आदि करें तो इम्यूनिटी हम्म, इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना कि हम्म, सारे चीजों को, चाहे वो पैथोजेनिक चीजें हों या जो भी कुछ भी चीजें हों, उन सारी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कौशल जी, फिर से एक बार तो हम सबसे एक बार थैंक्स बोलते हैं दैट यू हैव जॉइंड एंड जस्ट आपके थोड़ा सा कुछ, मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ अपने क्वेरीज का, अपने क्वेश्चंस का कुछ तो पता चला है। बहुत कुछ जानने को मिले हैं जो हम लोग मतलब नॉर्मली बुक्स पढ़ना पड़ता है या गूगल करना पड़ता है तो थैंक यू सो मच। आज के लिए यहाँ पे हम लोग खत्म इसको एपिसोड को खत्म करते हैं। शेष नेक्स्ट हम लोग आएंगे थर्सडे विथ एपिसोड 7। सो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू कौशल जी वंस अगेन। नमस्कार।